سیلاب کی تباہ کاریوں سے پنجاب میں دریائے راوی، چناب اور ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب دیکھا جا رہا ہے۔ پانی کئی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ جھنگ اور چنیوٹ شہر کو بچانے کے لیے ریواز پل کے قریب دھماکے سے شگاف ڈال دیا گیا۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ کم نہ ہوا، قصور میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ لاہور کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے چراغ بلوچ سے، جبکہ قصور سے ہمارے ساتھ شہروز زیب کمبو ہوں گے۔ جھنگ سے جانیں گے صورتحال صفدر وسیم سے، اور چنیوٹ کی صورتحال ناصر علی ہمیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے چراغ بلوچ سے لاہور کی صورتحال جانتے ہیں۔ چراغ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اور کے ساتھ سائفن کا مقام ہے، جہاں پر سائفن کے علاقے میں یہاں پر جس طرح دیگر علاقوں کے اندر ہمیں سیلابی ریلا گزرتا نظر آیا، یہاں پر بھی جو ہے وہ سیلابی ریلے کے اندر یہ علاقہ نظر ہوا۔ اس کی آپ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے واسف، تو یہاں پر صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پر جہاں پر بھی نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے ان جو سیلابی پانی ہے اس کو یہاں پر انٹر ہوئے یہاں پر زرعی زمینوں کی طرف؟ جی سر، یہ نا تقریباً 48 سے 50 گھنٹے ہو گئے ہیں پانی کو انٹر ہوئے، تو زرعی زمینوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور آگے جو ہے رہائشی علاقے ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا، اور ریسکیو ٹیم وغیرہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ جی، تو آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو یہاں کا علاقہ ہے جہاں پر ہم موجود ہے، یہاں پر جو ہے وہ زرعی زمینیں ہیں وہ یہاں پر متاثر ہوئی ہیں، جہاں پر لوگوں کے گھروں میں بھی پانی اب داخل ہو رہا ہے ڈیروں کے اوپر، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، ساتھ میں پریشانی کا بھی سامنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چراغ بلوچ ہمارے نمائندے جو کہ لاہور سائفن کے قریب واقع گاؤں تلواڑہ میں موجود ہیں، وہاں کی صورتحال آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا چراغ۔ قصور کی صورتحال بھی جانتے ہیں، قصور سے شہروز زیب کمبو ہمارے ساتھ ہیں۔ شہروز، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت میں دریائے ستلج پہ موجود ہوں۔ دریائے ستلج کی پانی کی بات کی جائے تو پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت پانی کا بہاؤ جو تیز بہاؤ جو ہے قریبی بستیوں کو پوری طرح سے سیلاب کرتا ہوا جہاں سے جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس وجہ سے ضلع انتظامیہ ویکیوٹ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ لوگوں کو وہاں سے ویکیوٹ کا عمل کو تیز کر دیا گیا ہے، اور انہیں ویکیوٹ کر جو ریلیف کیمپ ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی قصور کا کہنا ہے کہ ہم ہر طرح سے مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جان و مال کا جو یقینی بنانا ہمارا اولین ترجیح ہے۔ جی ٹھیک ہے شہروز، جھنگ کا رخ کریں گے، وہاں سے صفدر وسیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ صفدر، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دریائے چناب کے قریب موزہ ننکانہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کے باعث جو صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ سیلابی پانی کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ انتظامیہ نے شہری آبادی کو بچانے کے لیے جو ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جو ہے ریلوے لائن کو برج کر دیا ہے۔ یہ برجنگ جو ہے یہ ریواز برج کے قریب جو ہے ریلوے لائن کو برج کیا گیا ہے۔ موزہ ننکانہ ریلوے لائن کو کاٹنے کے بعد جو ہے پانی کا رخ دوسری جانب جو ہے موڑ دیا گیا ہے۔ ریسکیو پولیس، پاک آرمی کے جوان اور ضلع انتظامیہ افسران جو ہے وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں، جو مسلسل طور پر جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے۔ پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور سیلابی ریلا جو ہے اس وقت تریم براج کی جانب جو ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی، چنیوٹ کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں۔ چنیوٹ سے ہمارے نمائندے ناصر علی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر، کیا صورتحال ہے چنیوٹ میں؟ بالکل، چنیوٹ دریائے چناب کے مقام پر اس وقت سیلابی ریلا 8,60,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ ضلع بھر میں چاروں اطراف پانی پانی ہے۔ مین شہراؤں سمیت 80 سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا۔ ہزاروں ایکڑ پر محیط فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ سیلاب جو ہے وہ جنگ روڈ پر جمع ہے۔ سیلاب سے ہر طرف پانی پانی ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مسجدوں محلوں میں لوگوں کو پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں۔ مساجد میں اور محلوں میں اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر سکیں۔ ہمارے نمائندگان ملک کے مختلف علاقوں سے تمام تر صورتحال پنجاب کے اندر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چراغ بلوچ تھے ہمارے ساتھ، قصور سے شہروز زیب کمبو تھے، صفدر وسیم تھے جھنگ سے، اور چنیوٹ کی صورتحال ناصر علی۔ آپ سب کا بہت شکریہ تمام تر تفصیلات۔ فیلڈ مارشل سید ناصر منیر نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ، شکر گڑھ، نارووال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا۔ سیلابی صورتحال، ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی۔ سید ناصر منیر نے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا۔ فوجی جوانوں اور سول انتظامیہ کی مربوط اور انتھک کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے متاثرہ سکھ کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ سید ناصر منیر کا کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان، کہا سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔
मार्शल सैयद आसम मुनीर का करतारपुरा समेत पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फजाई जायजा लिया। फील्ड मार्शल को सैलाब की मुतासरा सूरत-ए-हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसम मुनीर ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। जनरल आसम मुनीर की करतारपुरा में मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात। करतारपुरा को तारीखी बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा सैलाब और मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात पर फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की मजबूत और अंतक काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों से भी मुलाकात की और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के दौरान जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना तैयारी और कौम की खिदमत के अज़म को सराहा। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, इससे निमटने के लिए इज्तिमाई कौमी हिकमत अमली ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए मुशावरत से हिकमत अमली बना रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने का काम तेज़ी से जारी है। इस पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जा सके। हंगामी सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म आला सतही इजलास बुलाएंगे जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इदारे शिरकत करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीराबाद के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। हुकाम की वज़ीर आला को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सोहदरा रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला मुतासरीन से घुल मिल गईं, बच्चे को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। मरियम नवाज का कहना था कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। वादा है कि सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। सैलाब की ज़द में आने वाले अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत को तरजीह बनाएं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तदा वहाब कहते हैं कि बारिशों से निमटने के लिए पेश के इंतजाम कर लिए हैं, इजाफी मशीनरी मंगवा ली गई है। बारिश के दौरान शहरी अफरा तफरी पैदा ना करें। सैलाब से सिंध को कोई खतरा नहीं है। कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट देखिए। में सैलाब का मुमकिन खतरा, सिंध हुकूमत ने भी कमर कस ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बताना है कि वज़ीर ज़राअत सेक्टर बिराज पर मौजूद है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने इंतजामात पूरे किए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तमाम तर सूरत हाल का बज़ात खुद जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने हुकूमती मशीनरी को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी है। एक एमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन डिक्लेयर की हुई है जहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई है कि MNAs MPs भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होंगे और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी लगा दी गई है। मेयर कराची का मीडिया से गुफ्तगू में बताना था, कराची में 3 बड़ी शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर रहे हैं। मलीर में पंपिंग स्टेशंस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया है। आज भी EV बाइक्स तकसीम की है ताकि इंसान दोस्त फिजा में अपना हिस्सा डाल सके। मैं शहरियों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर बारिश होती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हुकूमत, आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे। मेयर कराची ने शहरियों को पैगाम दिया कि कराची में बारिशों के हवाले से हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। मशीनरी को सड़कों पर लगा दिया गया है। शहरी परेशान ना हो और अफरा तफरी पैदा न करे। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़ कराची। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत आबी जारहियत पर उतर आया है। भारत को जंग में शिकस्त की तरह आबी जारहियत के भी संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना मोदी सरकार की पुरानी आदत है। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पंजाब को हर किस्म की ताउन की पेशकश की है। लाहौर में शादरा के मकाम पर दरिया रावी बिफर गया। दरिया किनारे मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। शफीकाबाद के इलाके में गाँव शाला, कब्रिस्तान और मवेशी भी पानी में डूब गए। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर दराज से। उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल लाहौर में दरिया रावी जो है वो बिफर चुका है और जो शादरा के मुकाम पर शादरा दरिया रावी के करीबी जो आबादियाँ थी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं। सर जी बताइएगा, कहाँ किसने आपको यहाँ से निकाला और कब निकाला और क्या कहना चाहेंगे? हमें एक दिन का वक्त गवर्नमेंट ने ये दिया था, भी आपका सामान बच्चे निकाल लो। हमने एक दिन से पहले कोई थोड़ा जा सामान हमारा अंदर रह गया था वजनी, और बकाया हमारे बच्चे और हम लोग बाहर निकल के बैठे हैं खुले आसमान के थल्ले। उनका कहना कि हमारा सामान जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो
दरिया के पानी में बह गया है। भैयारों मददगार, इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो हमारी इमदाद करे, क्योंकि हमारा नुकसान जो है वो बहुत हो चुका है और हम दिहाड़ीदार लोग। बिहाड़ी की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। बिहाड़ी भारतीय आबी जारहियत के बाद हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है, जिससे मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कच्ची पक्की और साहुका को मिलाने वाली मेन शाहराह पर दोनों अतराफ में पानी है। वहाँ की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी मुनव्वर। बिल्कुल, दरियाए सतलुज हेड इस्लाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाब के बायस कई जो रिहायशी बस्तियां वो ज़ेरे आब आई हुई हैं। मेरे साथ भापड़ा हलकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ की बिजली बंद की गई है, कितने घर है जो यहाँ पे ज़ेरे आब आए? एसपीओ हाजी शेर सब डिवीजन पूरे वाला, मेरा ज्यादातर इलाका दरिया में जो है वो मुतासर हुआ है और अब तक 165 के करीब जो बस्तियां हैं उनकी सप्लाई जो है वो मुनक़ता है सैलाब की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी तरफ से यही कहना है कि जहां पर ज़ेरे आब आने वाले इलाके हैं वहां पर बिजली की सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। बिजली का जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया गया है। जबकि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये है कि लोग पानी के तेज बहाव के बावजूद यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जलालपुर भट्टिया खैदराबाद बिराज पर पानी में कमी आना शुरू हो गई है। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया है। वहाँ की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, कादराबाद बराज पर पानी के बहाव में ठहराव आना शुरू हो चुका। कादराबाद बराज पर पानी की सतह 1,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जलालपुर भट्टियां के मुल्का इलाकों में वनी के तारड़, चक भट्टी, गुज्जर के बाले की और दीगर इलाकों में पानी की सतह में मज़ीद कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। दरिया चिनाब में सैलाबी रेले ने शदीद कटाव जारी रखा हुआ है। रेस्क्यू टीमें हज़ारों अफराद को रेस्क्यू कर चुकी हैं। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया है। जी, इस बुलेटिन से इतना ही।